read about nature of principles of management and significance of principles of management. And as I promised you people, as I promised you students, that I'll be taking 14 principles of management. But 14 principles of management बहुत ज़्यादा huge lecture हो जाएगा, so I'll be taking 7 principles today and 7 principles tomorrow. Okay, so this is Basis sir welcoming you people once again to the chapter number 1 of OC. We are going to study about 7 principles of management, the first 7 principles of management. Okay, is my voice audible to you? Visible nahi, audible. Okay, 14 principles of management. Principle okay, principle नहीं है, principle है, spelling mistake है, ध्यान नहीं देते यार, क्या कर रहे हैं? Okay, principle of division of work. Now basically what is principle of management? As I told you people कि अगर हम लोग ने ये 14 principles कंपनी में अडॉप्ट कर लिए, so the company will never do loss, or company will never go into any kind of bad situations. Okay, in order to make profit in the company, we need to implement these 14 principles of management very properly. Okay, so अगर हमने ये 14 principles अडॉप्ट कर लिया, ultimately company will make profit only. This is my guarantee to you people. This is Henry Fayol's guarantee to you people. Henry Fayol is known as the father of modern management. He curated these 14 principles of management. So we are going to study all these 14 principles in 2 parts. 7 principles today, 7 principles tomorrow, ultimately making it 14 principles of Henry Fayol. So first is division of work. But Henry Fayol said that if you want to run a company, if you want to make it run in a proper way, अगर तुमको कंपनी चलाना है और प्रॉपर तरीके से चलाना है, कंपनी में हर एक काम टाइम टू टाइम होना चाहिए, तो डिवाइड द वर्क. See, if there is work of 100 people which I am giving to just one person, okay, एक इंसान को मैंने 100 इंसान का काम दे दिया, तो ऑब्वियसली उसको टाइम भी लगेगा, वो थक भी जाएगा और काम एकदम अच्छे से होगा भी नहीं. बट अगर वही काम मैंने 100 लोगों में बांट दिया, okay, if I have divided the work, so the work will get completed on time, as well as it will be an optimum work. बहुत प्रॉपर तरीके से काम होगा, कुछ भी लॉस नहीं होगा. अल्टीमेटली योर प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, पैक्ड वेरी परफेक्टली. सबने अपना बेस्ट दिया होगा, क्योंकि सबके ऊपर बर्डन कम हो जाता है. अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इफ वी डिवाइड द वर्क, द लोड और द बर्डन ऑफ द वर्क गेट्स लेस and employees feel it very comfortable to work in this particular situation, as well as they do it very nicely. Okay, second is authority and responsibility. Authority and responsibility means what? सबको अपनी authority और responsibility समझाना है, सबको अपनी authority और responsibility पता होनी चाहिए. कंपनी में जितने भी लोग काम करें, ultimately they should know what is their authority, and according to their authority what is their responsibilities. So they should know what are their responsibilities, and accordingly they should work on that particular thing, ultimately resulting in doing their job in a very perfect way. Okay, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने फीस भरी, अगर नहीं भरते हैं लोग, तुम्हारे पेरेंट्स ने फीस भरी पर तुमको समझ में आ गया कि तुम्हारे पेरेंट्स ने फीस भरी है, तो मेरे ऊपर क्या अथॉरिटी है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ स्टूडेंट, दैट इज माई अथॉरिटी. ठीक है, मेरे ऊपर ये एक बोलते हैं ना, एक मेरे ऊपर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, name tag है that I am a student. Second thing, what are my responsibilities being a student? If you realize those responsibilities, if you make sure कि तुम्हारी क्या क्या responsibilities बनती है being a student, you will do those jobs of being a student very perfectly. अगर तुमको पता चल गया कि तुमको student बन के क्या काम करना है, तो ultimately you will do your job as a student. क्या काम है student का? कॉलेज बंक करना, कैंटीन में वड़ा पाव खाने का, बाहर जाके क्लास छुटने के बाद चाइनीज बिल खाने का, वो सब नहीं. तो तुम लोग बिना बोले करते हो, बट बोल कर भी कम से काम नहीं करते हो. दैट इज यू डू नॉट स्टडी, एंड दैट इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स. ओके, कुत्ते लोग बाहर भोग रहे हैं, अगर वो आवाज़ आ रही है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए स्टूडेंट? दैट यू शुड स्टडी. तो ऑब्वियसली अगर कंपनी में कोई काम कर रहा है, तो उसको जो अथॉरिटी दी गई है, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ मैनेजर, इफ someone is a watchman, if someone is a sweeper, if someone is anybody, if at any post, कोई भी अथॉरिटी दी गई हो उसको, वो अगर उस अथॉरिटी के काम को प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अल्टीमेटली ऐसा जितने लोग हैं कंपनी में, सबने अपना अपना काम प्रॉपरली कर लिया,
कंपनी में कुछ भी गलत नहीं होगा, सब अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अल्टीमेटली कंपनी इज डूइंग प्रॉफिट. ओके. थर्ड इज डिसिप्लिन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच यू पीपल डोंट फॉलो. आई एम रियली सॉरी. करते हो तुम लोग, कभी कभी कर लेते हो, डिसिप्लिन तुम्हारा होता है कभी कभी, बट द थिंग इज के डिसिप्लिन. ओके, कमिंग टू डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट point in principles of management. If you see discipline is nothing but if you know you are working in a company, you are not on a Goa trip or something. तुम लोग कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं गए हो. So you are working in a company and you have to be formal in everything, from your clothes to your behavior. You should behave formal, you should behave well mannered, you should adopt a discipline, you should see that you don't hurt anybody, you should see that you don't spoil any other person's work. तुम अपना काम भी अच्छे से करो, दूसरों को भी अच्छे से करना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखो, अच्छे से काम करो, अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, और यूनिटी ऑफ कमांड भी रखो. गुड पॉइंट. व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट कि कोई भी इंसान किसी को भी कमांड नहीं दे सकता. यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या कि कल जो इंसान के पास पावर है, अथॉरिटी है, वही इंसान किसी को कमांड दे सकता है. इफ द कमांड शुड बी फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर लेवल. द कमांड का फ्लो रिवर की तरह होना चाहिए. ऊपर वाले ने नीचे वाले को कमांड दिया, नीचे वाले ने और नीचे वाले ने और नीचे वाले ने और नीचे वाले को. ऐसा नहीं कि स्वीपर इज कमिंग एंड टेलिंग टू द एंटरप्रेन्योर कि तू ऐसा कैसा कर रहा है. सॉरी फॉर दैट. सो दैट पर्टिकुलर थिंग शुड नॉट हैपन. योर फ्लो शुड बी लाइक अ रिवर, योर फ्लो शुड बी लाइक अ स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप. तो एक यूनिटी होनी चाहिए कमांड की प्रॉपर तरीके से. ठीक है. एंड फिफ्थ पॉइंट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या, सबको गाइड करके रखना है, हमको बता के रखना है कि कौन क्या कोई किस डायरेक्शन में हमारी कंपनी को हमको लेके जाना है. सी देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. फर्स्ट पॉइंट इज एवरीवन शुड नो वेयर वी हैव टू लीड अवर कंपनी. डायरेक्शन सबको पता होनी चाहिए. सेकंड इज दूसरा वाला भी एक डायरेक्शन होता है जिसमें हम लोग किसी को मदद करते हैं. वी आर डायरेक्टिंग समवन. ठीक है. इफ आई एम सिटिंग विद 10 पीपल लाइक, so if I am the director of any company, so director नहीं, if I am directing someone like मेरे साथ और 10 लोग बैठे हैं मेरी ही तरह, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, अगर मेरा काम जल्दी हो जाता है तो मैं साइड वाले को हेल्प कर रहा हूँ, कोई और किसी और को हेल्प कर रहा है. दैट मीन्स वी आर हेल्पिंग ईच अदर, वी आर डायरेक्टिंग ईच अदर, एंड अल्टीमेटली वी आर मेकिंग श्योर कि कंपनी में काम और प्रॉफिट बहुत अच्छे से हो. ओके. 6 पॉइंट क्या है, दिख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूँ. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. नाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सेज दैट कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. पहले कंपनी के बारे में सोचो. काम कर रहे हो तो कंपनी के लिए काम करो, और अल्टीमेटली कंपनी तुम्हारे बारे में सोचेगी अगर तुमने अच्छे से काम करके कंपनी को दिखाया. डोंट वर्क फॉर योर सेल्फ कि हाँ कंपनी तो कुछ भी नहीं करेगी, मेरे को तो प्रॉफिट नहीं होगा, मेरे को इतना कुछ कंपनी में प्रॉफिट हो ना हो, मेरे को मेरा सैलरी मिल रहा है ना, बस हो गया. ये एटीट्यूड नहीं रखना. यू शुड वर्क फॉर योर कंपनी फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट योर ओन मनी. कंपनी विल थिंक फॉर यू इन फ्यूचर. ओके. And last point is centralization. There should be a central power. There should be someone who is guiding you. There should be someone. हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में एक पिरामिड पढ़ा था, अगर सबको याद है तो पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पार्ट था वो था एंटरप्रेन्योर. ठीक है. तो ये जो एंटरप्रेन्योर है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस पर्टिकुलर टिप, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज द एंटरप्रेन्योर. दिस पर्टिकुलर पर्सन इज द सेंट्रल पावर ऑफ द कंपनी, एंड इसी के बेसिस पे कंपनी चलती है. योर कंपनी रन्स with the help, with the powers of this person, entrepreneur. He is the central power, he or she is the central power. उसी से फ्लो पूरा, जैसे मैंने बोला ना डाउनवर्ड स्लोप होना चाहिए पूरे कमांड्स का, वैसा ही जो कमांड स्वीपर तक पहुंचता है वो अल्टीमेटली निकलता कहाँ से है, एंटरप्रेन्योर से. ऑल तो पिरामिड का जो टिप टॉप मोस्ट पार्ट है दैट इज द सेंट्रल मोस्ट पावर. सेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है. कोई भी किसी को भी कमांड दे रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए. योर कंपनी शुड रन विद द कमांड्स ऑफ टॉप मोस्ट पर्सन इन द कंपनी. किसी एक जन के बोलने पे कंपनी चलनी चाहिए. बहुत सारे लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, अल्टीमेटली कंपनी कैन गेट स्पॉइल्ड. ओके. सो दैट वाज 7 points of principles of management. First point was division of work, second is authority and responsibility, third is discipline, fourth is unity of command, fifth
unity of direction. 6.1 subordination of individual interest to general interest. And 7th centralization. And from 8th to 14th we are going to study tomorrow. Okay, so that was it for OC first lecture, OC second lecture, first chapter. Okay, थर्ड लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी वीडियो एंड चैनल. वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू पीपल. स्प्रेड द मैसेज, स्प्रेड दिस वीडियो. जितना हो सकता है उतना फैला दो, जितना जहाँ तक स्टूडेंट्स तक पहुँच सकता है उतना फैला दो. महाराष्ट्र बोर्ड के बाहर नहीं जाएगा चलेगा, जस्ट बिकॉज दिस इज द पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड. थैंक यू सो मच.